So today we are going to start with the Consumer Protection Act. Okay, basically, if I say, so what do you understand by, if in general terms I ask you, what do your understanding or what do you understand by word Consumer Protection Act? Any idea? कोई भी word हम सुनते हैं तो माइंड में एक रफ थॉट प्रोसेस आता है कि इसका मतलब ये हो सकता है. तो आपका क्या मतलब बेसिक थॉट प्रोसेस आता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या सोचता है कि क्या हो सकता है? Any idea? Okay, let's make it more simple. Do you have any understanding related to what is consumer? Word consumer. So before going into, if I say in general, before going into all this process, means what is Consumer Protection Act, we need to understand the basic thing, what is a consumer. Okay. So for example, we are into the medical setup. Okay. हम एक हॉस्पिटल रन करते हैं, हम एक क्लिनिक रन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम किसी को एक सर्विस लेंड कर रहे हैं, दे रहे हैं. ठीक है. जब हम सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को, तो व्हाट हैपेंस कि आप जब कोई भी सामान, कोई भी चीज, कोई भी सर्विस मार्केट में प्रोवाइड करते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके दो चार लोग जो है उपभोक्ता हो जाते हैं, दे बिकम्स योर कंज्यूमर. ओके. उस सर्विस को वो यूटिलाइज करते हैं. तो जो वन द कैटेगरी हु इज यूटिलाइजिंग योर सर्विसेज, व्हाट एवर द सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, दे बिकम्स योर कंज्यूमर. ओके. So this act, if I talk about, is Consumer Protection Act, is more related to whatever the services we are providing to the student or to the medical, authorities providing to the consumers, basically, the how they can protect their rights, how they can protect their, key beneficiaries thinks in their favor, and what is right and what is wrong. So what is right and what is wrong in both benefits, for the medical practitioners and for the consumers. So this act deals about the rights and benefits of consumers only. Okay. So what all things we are going to study into this? What is first thing, what is the consumer, वो मैंने आपको explain कर दिया. What is the rights of consumers? So आपको मतलब अब being a consumer या being a medical professionals, आपको पता होना चाहिए कि consumers का क्या right है, क्या हक है, whatever the government or the stated law body have given them into that particular province. मतलब उस particular area में, उस particular state में, उस particular region में गवर्नमेंट ने आपको क्या क्या राइट्स दिए हैं. ठीक है. तो वो आपका एक चीज हो गया. वेयर फॉर एग्जाम्पल, अब पेशेंट को या फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स को ये फील होता है कि उनके राइट्स को प्रिजर्व नहीं किया गया, दे हैव बीन फीलिंग अ फ्रॉड. उनको लगा कि उनके साथ फ्रॉड हुआ, जो भी सर्विसेज बोली गई थी और जो भी जिस चीज के लिए उन्होंने हमें पेमेंट किया, हमने वो बेनिफिट्स, वो चीजें उन्हें नहीं प्रोवाइड की. ओके. So where they can go, to whom they can ask for the justice. So the area or the place where they can put their complaints. Okay. Next is definition. Okay, what is the exact definition of Consumer Protection Act? Laws into the medical profession कि क्या क्या हमारे particular laws होते हैं, जो being a doctor मुझे भी mind में रखना है, and patient जो मुझसे service ले रहा है उसको भी उसके बारे में knowledge होना चाहिए. ठीक है. Consumer Protection Act 1986. Okay. Then who is liable and who is not. Okay. तो आपका जो भी एक्ट है उसमें हम ये चेक करेंगे कि लाइबिलिटी किसकी है. ठीक है. who is the main body who has to be. Okay. Then what is the duties of a doctor. Okay. being because अब पेशेंट तो कुछ भी क्लेम कर सकता है ना, तो हमें मीन वाइल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी बेनिफिट के बारे में, उसके भी राइट्स को भी बारे में सोचना है. तो बेसिकली दिस एक्ट डील्स अबाउट द ड्यूटीज एंड if I talk about rights and ethics of a doctors at the same time also. Okay. And prevention is better than cure. If in medical science you have heard a lot of times the same things कि अगर means for malpractice of any kind of fraud to be happened, what we need to keep into the mind first of all thing is कि what is the prevention, how we can prevent such conditions to be happened. उस कंडीशन में पहुंचने से पहले हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. बीइंग अ पेशेंट आल्सो, बीइंग अ डॉक्टर आल्सो, बीइंग अ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई टॉक अबाउट एक हॉस्पिटल होने के नाते मुझे भी पता होना चाहिए कि क्या क्या मैं
अपने प्लान्स में इनबिल्ट कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच कंडीशंस टू बी हैपन. बिकॉज अगर मैं बात करूँ एनी अथॉरिटी, एनी मेडिकल बॉडी, इफ आई टॉक अबाउट एम्स है, या फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट रिलेटेड टू एनी मेडिकल बॉडी, एम्स हो गया, फोर्टिस हो गया, एनी ब्रांड इन द कंट्री, तो हर किसी का क्या होगा, देयर इज सर्टेन लीगल डिपार्टमेंट, देयर इज सर्टेन कस्टमर केयर डिपार्टमेंट, देयर इज सर्टेन अदर डिपार्टमेंट. इनका क्या काम होता है, टू टाइम टीचर्स द डॉक्टर्स की व्हाट इज देयर लीगल ड्यूटीज, व्हाट इज देयर लीगल एथिक्स फॉर देयर प्रोफेशंस, फॉर देयर पेशेंट. एंड सेम थिंग, awareness for the organization also, how can they can inbuilt into their practice, so they can suffer such kind of things. Because blame, if you any continuous blames are coming, definitely it will hamper your reputation, it will hamper your brand. Okay, so for any organization related to the medical sector, the services is something which is they are known for. Okay, what kind of service that particular organization is providing to their to their consumers, for that they are known. So basically this act deals with all these things. Okay, and lastly we are going to work on SWOT analysis. Okay, so SWOT analysis now. So coming to the rights of consumers. Okay, so the consumer international forum or international organization union, consumer unions होता है usually, IUCU, basically the umbrella body for 250 organizations over 120 countries has endorsed a rights. ठीक है, तो ये सिंगल वन बॉडी नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड के कुछ कमिटीज ने बैठ के साथ में जो है ये डिसाइड किया कि क्या क्या कंज्यूमर्स के राइट होने चाहिए related to medical field, related to general. So there is a body जिसने after examining several case studies and several things, time to time they apply the new things and everything into this act. Okay, on the basis of the negligence कहाँ होना चाहिए, कहाँ किसका right पे we need to work, and time to time they update the things also. Okay, so on the basis of that they endorse the 8 rights. उन्होंने जो है 8 rights जो है बोला कि रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, ये 8 राइट्स को फोकस करके हमें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस रेंडर करना है, प्रोवाइड करना. ओके, फर्स्ट थिंग सेफ्टी. ओके, कि वी नीड टू कीप इन द माइंड कि व्हाट इज द सेफ्टी ऑफ अ पेशेंट. ठीक है, चूज. For example, how we can choose, whenever you went to any hospital, do you receive any kind of choose option? If I say word choose, so how you will understand ki what you will choose? Can you? So basically, for example, if I say word choose, okay, so what do you understand by word choosing? For example, you come to me, okay, for XYZ disease condition, आप मेरे पास, for example, if I take a case of obstructive jaundice, okay, obstructive jaundice is a case, for example, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में पहले बता देती हूँ क्या होता है कि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आपने पढ़ा होगा कि जॉन्डिस इज समथिंग जो हम लेमन टर्म में पीलिया कहते हैं. ठीक है, आपका जिसमें बिलिरुबिन लेवल का डिफरेंशिएशन बॉडी में राइज होने लगता है कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में, और जिसकी वजह से इन जनरल जो है बॉडी का, स्किन का, स्क्लेरा का कलर जो है येलोइश होने लगता है. ठीक है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन होने लग रहा है, कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है. ठीक है, अब व्हाट हैपेंस कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होगा कि जो आपका कॉमन बाइल डक्ट होता है, ह्यूमन एनाटॉमी इफ आई टॉक अबाउट, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया कि पहले वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन रहा था, पर अब उसने सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट में उसने स्टोन फॉर्मेशन कर लिया. अब जब सीबीडी में आपका स्टोन फॉर्मेशन होगा तो ग्रेजुअली क्या होगा कि आपका बाइल जूस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जब भी आप टेस्ट करेंगे जॉन्डिस आएगा. ठीक है, अनटिल अनलेस आप अल्ट्रासाउंड नहीं करेंगे. ठीक है, तो पेशेंट को इनिशियली क्या होगा कि उसने चेक करवाया, उसको तो जॉन्डिस का ऑप्शन मिला. जॉन्डिस का ऑप्शन मिला. जॉन्डिस का जब ऑप्शन ओवरअप हो गया, फॉर एग्जांपल जॉन्डिस
पेशेंट को जॉन्डिस है, ठीक है, अब बार बार पेशेंट जा रहा है और उसने टेस्ट करवाया, उसको जॉन्डिस आ रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी और कुछ फॉर दैट रीजन वो थोड़ा सप्रेस हो जाएगा, फिर क्या होगा, 2 महीने 3 महीने बाद फिर वही सेम कंप्लेंट्स, ओके। तो अब जब पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचेगा तो डॉक्टर उसको 2 ऑप्शन देगा, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद व्हेन ही गेट अ फाइनल कंक्लूजन कि पेशेंट का जो है यही है, तो वो कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो तुम वन टाइम में ही तुम पूरा रिमूव करवा लो सर्जिकल प्रोसीजर से, गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करवाओ, गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाओ, ठीक है, कॉलेसिस्टेक्टमी इज द प्रोसीजर, वो करवा लो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या देगा कि आप सीबीडी डक्ट को क्लियर करवाओ, ठीक है, और कुछ टाइम बाद आपका जब मनी बजट हो तो आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करवा लो, पॉलीसिस्टेक्टमी करवा लो। इफ यू हैड मतलब एक प्राइवेट कंसल्टेशन पे आप गए, डॉक्टर ने आपको दोनों ऑप्शन दे दिया, आप चूज करोगे क्योंकि इमरजेंसी है, पेशेंट की लाइफ बचानी है। अब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या होगा कि सीबीडी जो कॉमन बाइल डक्ट है उसका स्टोन मूव करके नीचे आ जाएगा अगर आपका अपेंडिक्स में, तो इट विल लीड टू सडन डेथ ऑफ अ पेशेंट, सीरियस कंडीशन हो जाता है, डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। तो अब प्रायोरिटी ये है कि हमें सीबीडी डक्ट को खाली करना है, वहां का स्टोन रिमूव करना है, वो डे केयर प्रोसीजर में 30 40 50 हजार में हो जाएगा, ठीक है। पूरा रिमूवल का प्रोसेस मान लो 1 लाख का हो रहा है और पेशेंट का बजट नहीं है, हमने डॉक्टर को दोनों डॉक्टर पेशेंट ने हमें अपनी प्रॉब्लम बताई कि वी डोंट अफोर्ड सच मच और इतना पैसा नहीं है मतलब वट एवर मे बी द कंडीशन ही एक्सप्लेन, मैंने पेशेंट को बताया दोनों कंडीशन बताई कि फॉर टाइमिंग तुम ये करवा लो, जब तुम्हारे पास बजट होगा तुम वो वाला सर्जरी करवा लेना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में बताया कि चलो तुम हमारे यहाँ से नहीं करवा सकते, तुम कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई गवर्नमेंट सेटअप को अप्रोच कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने पेशेंट को ऑप्शन चूज करने को दे दिया कि हमारे हॉस्पिटल में तो भाई हम इतने में करेंगे, कम में करवाना है तो हम 2 पार्ट्स में कर देंगे, फिर भी तुम्हारा बजट नहीं बैठ रहा तो यू हैड अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट मेरे पास आया XYZ कंडीशन के लिए, ठीक है, वहां पे क्या है मैं उसको दोनों बताऊंगी, तुम मेडिसिन से भी ठीक हो सकते हो, तुम सर्जरी से भी ठीक हो सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारा चॉइस है कि तुम मेडिसिन पे प्रोलॉन्ग जिंदगी भर जीना चाहते हो और रिपोकेशन झेलना चाहते हो, या तुम सर्जिकली इस चीज को रिमूव करा के फ्री होना चाहते हो। तो वो पेशेंट के पास ऑप्शन होगा कि वो क्या करवाना चाहता है। एक एग्जाम्पल लेता है टूथ एक्सट्रैक्शन का, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आया मेरे पास, ठीक है, मैंने उसको बोला कि भाई ये दांत हम बचा सकते हैं, रूट कनाल थेरेपी कर देते हैं तुम्हारी नसों का इलाज इन जनरल, ठीक है, रूट कनाल थेरेपी करके हम इसको बचा सकते हैं और कैप लगा के तुम दांत जैसे नॉर्मल जिंदगी जी रहे तो वैसे। पेशेंट कहेगा नहीं जी नहीं, उसमें तो इलाज में आपका 5,000 का खर्चा, एक काम करिए आप सिंपल सी चीज मेरे लिए कीजिए, आप 500 में मेरा दांत निकाल दीजिए। वहां भी मैंने पेशेंट को फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि तुम्हारा लाइफ तो नेचुरल है, ये वो, ही वॉज नॉट रेडी। तो व्हाट इज उसका जो चॉइस है वो मुझे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बट वेन एवर आई एम चूजिंग हिज रिस्पेक्ट और चॉइसेस, मेरे को एक कंसेंट भी साइन करवाना पड़ेगा कि मैंने आपको सारी इलाज की प्रक्रिया अच्छे से, आई हैव एक्सप्लेन बोथ ऑफ द प्रोसीजर्स और एवरीथिंग टू यू इन डिटेल, नाउ वॉट एवर यू चूज आई एम रिस्पेक्टिंग दैट एंड डूइंग माई ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू यू, इफ समथिंग हैपेंस आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो मैं आपको ऑन टेबल कुछ होता है, आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई हैव एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दिस सर्जरी और दिस प्रोसीजर टू यू। तो ये हमें कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन में मैंने आपको इस प्रोसीजर में बताया कि इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन मतलब कि मैंने एक्सप्लेन किया पेशेंट को, पेशेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद मी, ही विल गो टू अनदर हॉस्पिटल, ही विल कलेक्ट देयर ओपिनियन, देयर अप्रोच और उनका ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या है। तो वॉट एवर ही हैज राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वॉट एवर वेर एवर ही वॉन्ट्स टू अप्रोच, ही हैज द राइट टू गेट अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड देन ही हैज राइट टू चूज हिज treating doctor or treating service render organization, okay. Third is herd. Herd is like if I talk about from where you are getting all this thing, okay. Next is consumer education. For example, कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर्स को एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि उनका जो है क्या कहते हैं, व्हाट इज देयर एग्जैक्ट नॉलेज, ठीक है, उनको अपने राइट्स के बारे में दे आर नॉट अवेयर, ठीक है, इन स्पेशली अ कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज लाइक आर्स, ओके। तो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखेंगे कि जो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो आपके रिमोट एरियाज में आते हैं, दे डोंट नो इवन देयर बेसिक राइट्स, ओके, उनको अपनी बेसिक राइट्स ही नहीं पता होते कि आप कहाँ जा सकते हैं क्या। तो व्हाट हैपेंस इफ दे डोंट नो देयर बेसिक राइट्स, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इस चीज का बेनिफिट उठाते हैं, ठीक है, दे ट्राई टू abolish or they try to ओवर रूल, ठीक है। तो आप
ये भी माल प्रैक्टिसेस में इंक्लूड होता है, ठीक है। रेडरेस सेटिस्फेक्शन ऑफ द बेसिक नीड्स, आपका जो भी बेसिक नीड, फॉर एग्जांपल मैं आपसे सर्विस ले रही हूँ तो आपको जो भी बेसिक नीड्स है, आपको एक बेड प्रोवाइड करना है, जो टाइम टू टाइम आपके नर्सिंग स्टाफ हैं वो केयर करें, ये जो बेसिक हॉस्पिटल की सर्विसेज होते हैं वो आपको देना है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद से हेल्दी एनवायरनमेंट, आप फॉर एग्जाम्पल आई एम पुअर बट यू डोंट शो योर ट्रीटमेंट मोडालिटीज में, आप नहीं शो कर सकते कि यार ये तो पुअर है तो मैं इसके साथ अच्छे से नहीं। फॉर मी एवरी कस्टमर इज अ कस्टमर एंड आई नीड टू बिल्ड अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो ज्यादा कॉस्टली सर्विसेज लेगा, ठीक है, उसको हो सकता है मैं थोड़ा मतलब बीइंग अ डॉक्टर में ये कर सकता हूँ कि उसको एक एक्स्ट्रा नर्स दे दिया, बट व्हेन आई एम अ डॉक्टर आई एम ट्रीटिंग माई पेशेंट, तो ऑन दैट बेसिस पे व्हाट हैपेंस कि मुझे हर केस को उसी लेवल पे, एक जस्टिस लेवल पे ट्रीट करना है, एक पेशेंट को हेल्दी एनवायरनमेंट देना है जहां पे उसको अपने डिसीजन पे या मेरी सर्विसेज को चूज करने पे रिग्रेट ना फील हो, ओके। सो कंज्यूमर राइट नंबर 1 to 6, also इंश्योरेंस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 19, तो फर्स्ट से लेके आपका 6 तक जो है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका कंज्यूमर, बाकी दो जो है वो एथिकल पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑन द बेसिक नीड्स एंड आपका हेल्दी एनवायरनमेंट बिल्ड करना, ओके, क्लियर राइट नाउ। So now coming to next point is कि when a consumer has any complaint or grievance against the hospital, for example आपने मुझसे ट्रीटमेंट लिया, हम प्रोसेस में आते हैं, ठीक है, आपने मुझसे ट्रीटमेंट लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आपका ट्रीटमेंट हुआ, आपको कोई दिक्कत हो गई, कोई माल प्रैक्टिस हो गई, तो ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, अभी तक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली, कंज्यूमर क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, क्या एक्ट है, क्या डील करता है, क्या क्या है, अवेयरनेस क्या है, क्या होना चाहिए, बेसिक राइट्स क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन सामने कंज्यूमर से रिलेटेड वी हैव गॉट अ लॉट, ओके। नाउ वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर where you need to deal and how you need to deal, okay। so for example you feel कि कोई माल प्रैक्टिस हुई, कोई गलत चीज हुआ ड्यूरिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर का कोई फॉल्ट है, एनी फॉल्ट, ओके। so what happens when a consumer has any complaints or grievance मतलब कि आपके दिल में कोई ग्रज है, ठीक है, तो वो कंप्लेन या वो ग्रीवेंस आप क्या करेंगे, एनी हॉस्पिटल या एनी मेडिकल अथॉरिटीज के अगेंस्ट है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इन दैट सिनेरियो फाइल अ केस, ठीक है। आप जो हम जनरल करते हैं कि हमें फ्रॉड कुछ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक केस को फाइल करेंगे। अब वो जो व्हेनेवर आई एम फाइलिंग दैट केस, ओके, व्हेनेवर आई एम डूइंग दैट केस सीकिंग, तो अब वो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल व्हेनेवर आई एम फाइलिंग अ केस, तो क्या होगा कि आप फाइल केस क्यों करेगा, तो आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट होगा, माल प्रैक्टिस होगा, मिसबिहेवियर होगा, ठीक है, या वॉट एवर द सर्विस उन्होंने बोला वो प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है, दीज आर द बेसिक थिंग्स। अब इस कंडीशन में पेशेंट क्या करेगा, तो उसके पास ये है कि वो फाइल करेगा केस, ठीक है, जाके अपना कंज्यूमर फॉरेन और सिविल कोर्ट में, ठीक है, फॉर सीकिंग कंपनसेशन, कि उसको कंपनसेशन चाहिए, उसके साथ ये चीजें गलत हुई, उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन चाहिए, ठीक है। सो सेंसिटिव ड्यूरिंग द जो भी सेंसिटिविटी फील हुई, जो भी मिस मैनेजमेंट फील हुआ, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स, वो जाके अपना डायरेक्टली कर सकता है, ठीक है। अब क्रिमिनल टाइप कंप्लेंट्स में क्या होगा कि वो लोकल पुलिस स्टेशन जाएगा, वहां एफआईआर दर्ज करेगा, फिर वहां से एक कॉपी लेगा, ठीक है, अब कॉपी लेने के बाद एक कॉपी हॉस्पिटल को भेजेगा, एक कॉपी जो है कंज्यूमर कोर्ट को भेजेगा, और फिर वहां पे केस फाइनलाइज होगा, ठीक है। तो दीज आर द टू वेज वेयर यू कैन गो, कि एक आप जो है पुलिस बॉडी को भी इन्वॉल्व करोगे, मेडिकल ये सब जो है, क्योंकि आपने क्या किया, या तो आपने हॉस्पिटल सेटअप पे क्वेश्चन शुरू कर दिया, या हॉस्पिटल सेटअप ने आपके साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया, मारा पीटी, वॉट एवर मे बी द क्रिमिनल रिकॉर्ड जो भी बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, हमारी पुलिस भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो दीज आर द टू मेथड्स, एक आपका शांतिप्रिय तरीका होता है, शांतिप्रिय तरीके से आपको लगा गलत हो, आपने कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट दायर कर ली, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड आपका नेशनल लेवल होता है, ठीक है, 3 लेवल्स में होता है, और लास्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है।
ये होता है, आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो लास्ट यू कैन नॉक द डोर्स टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये आपका जो भी मिसमैनेजमेंट होता है इसके 1 वीक से लेके 30 डेज के बीच में आपको कंप्लेंट दायर करना पड़ता है, एंड एवरी क्लॉज का अपना अपना ड्यूरेशन टाइम्स होता है। इफ यू गो इनटू द डेप्थ, ठीक है, तो 30 डेज के अंदर आपको रिटन कंप्लेंट फाइल कर देनी होती है, ठीक है, इनटू द कंज्यूमर कोर्ट। ओके, जो भी इंसिडेंट हुआ उसके अंदर, ठीक है। अब क्रिमिनल केस में क्या होगा कि आपने हाथापाई कर लिया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने हाथापाई कर लिया, इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि आप पुलिस इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि आपका जो भी क्या कहते हैं कि आपका जो भी ये बॉडीज है इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे। एक जनरल हमने फॉर्मेट अभी तक देख लिया। नाउ वी विल सी कि आप so laws in the medical professionals. So doctors have been liable under the law of civil procedure code, Indian penal section code, law of contract, law of torts and other specific legislation, जो कि आपका सेक्शन 304 ए है इंडियन पिनल कोड आईपीसी का, जो हम लगाते हैं आईपीसी की धारा। तो आईपीसी की धारा जो वर्ड होता है उसका मतलब है इंडियन पिनल कोड के एक्ट के कोड के अकॉर्डिंग कोड नंबर 304 ए, ठीक है। द डॉक्टर हु कमिट्स द क्राइम, जैसे डॉक्टर माल प्रैक्टिस, मतलब आपने कोई गलत ट्रीटमेंट किया, कोई गलत चीज करी, तो नहीं करना चाहिए था, पेशेंट की सेफ्टी के अगेंस्ट, ट्रीटमेंट मोडालिटीज के अगेंस्ट था वो, ठीक है। तो उन दैट सिनेरियो व्हाट हैपेंस दैट क्रिमिनल लायबिलिटी इज पनिशेबल। अब जो भी क्राइम करेगा उसको पनिश किया जाएगा, हूएवर इज फाउंड। आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट जिसको भी गिल्टी फाइंड करेगी एज अ प्रैक्टिशनर, वो आप क्या क्या करेगा, उसको जेल होगी, ठीक है, ठीक है, फॉर 2 years प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स आपका पेनाल्टी जो हम उस पे लगाते हैं, कुछ फिक्स्ड अमाउंट, या फिर दोनों चीजें होंगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन की अगर आपने कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं करी है तो आप फॉर एग्जांपल आप पे पेनाल्टी लगेगी, बट कोई मेजर क्लॉज फाइंड आउट हुआ तो आपको हो सकता है जेल भी हो सके 2 साल का, ठीक है। और उससे भी ज्यादा कुछ अगर हमें लगता है कि नहीं फाउंड गिल्टी है, बहुत ज्यादा है, तो हमें मेडिकल कंपनसेशन में पैसे भी देने चाहिए सफरर की फैमिली को, तो हम दोनों कंडीशन लगा देते हैं कि ठीक है, आप जेल में रहेंगे प्लस आपको इतनी पेनल्टी सामने वाले कंज्यूमर को इतना पे करना है, ठीक है। So, civil liability arises in the cases of the medical services rendered on the payment of fee. अब जो भी सिविल लाइबिलिटीज है, जो भी हम कंपनसेशन कैलकुलेट करते हैं, वो फीस कितनी रेंडर कर रहा है डॉक्टर और किस टाइप का सर्विसेज है, कहाँ कितना उसने मैल फंक्शनिंग करी है ड्यूरिंग द, कि कितना कमिटमेंट था कितना नहीं और क्या था क्या नहीं, उन सब चीजों के एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी कैलकुलेटेड अंडर द सेक्शन ऑफ 73 एंड 74 ऑफ आईपीसी एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो आपका एक्ट होता है, इंडियन कंज्यूमर एक्ट, उनके बेसिस पे 1986 के बेसिस पे वी डू दैट, ओके। Under the law of torts, a wrong that is independent of contract, okay, or civil liability is applicable to the doctors on the ground of professional misconduct, okay। For example, कुछ misconduct किया, कुछ वैसा किया, तो उन cases पे भी डॉक्टर को liability होती है and he or she is responsible for that, okay। So these are the different basic laws। If I talk about आपका आईपीसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के different laws से different clause थे, okay। Now coming to next part is so अब ड्रॉबैक्स क्या है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, नीड फॉर सीपीए क्यों लगा, क्या ड्रॉबैक्स था, क्यों चीजें फंक्शनैलिटी नहीं हो पाई, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि सीपीए क्या है क्या नहीं, बट नाउ वी नीड टू नो कि आपका इस एक्ट की जरूरत क्या पड़ी। तो ड्रॉबैक्स ऑफ आईपीसी क्या था कि लॉ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड अदर स्पेसिफिक लाइगेशन, मतलब जो भी नॉर्मल आपका कोर्ट में सिविल कोर्ट्स में चलता था, उनमें क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, नीड्स बहुत लंबी पड़ती थी, डिले इन डिस्कशंस हो जाता था, ठीक है।
एंड व्हाट हैपेंस कि हाई कॉस्ट होता था ब्रिंगिंग इनटू द एक्शन, आपको लॉयर एफोर्ड करना है, लॉयर की फीस बहुत ज्यादा है, ये है वो है, लिमिटेड एक्सेस आपको बहुत लंबे समय में, क्योंकि कोर्ट के पास और भी अदर केसेस होते थे, तो इन केसेस में बहुत ज्यादा डिले होता था. फॉर ऑल दीज रीजंस एंड टू इम्प्रूव एंड फॉर द बेटर फंक्शनैलिटीज एंड फॉर मोर जस्टिस एंड इजीली यू नो कि नेग्लिजेंस फील ना हो, सामने वाले को कॉशियस रहे चीजें, और ऑन द बेसिस, क्योंकि जितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतने ही ज्यादा चांसेस ऑफ आप जो भी एविडेंस है उसको चेंज कर सकते हैं, या इजी हो जाता था. ठीक है, तो उन केसेस में जस्टिस हमें उतना ज्यादा नहीं है, सामने वाले का पेशेंस लेवल एंड पीपल का ट्रस्ट. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स एंड टू द कंज्यूमर्स, वी हैव opted this. Okay, and no provision into the Medical Council Act 1956 to entertain the complaints of the patient. ठीक है, अब आपका जो भी मेडिकल काउंसिल या मेडिकल बॉडीज के जो एक्ट है उनमें कहीं भी कंज्यूमर से रिलेटेड या उनके कंप्लेंट से रिलेटेड हमारे पास कोई पॉइंट नहीं था जहाँ पे उनके बारे में भी बात हुआ हो. अगर इसमें आप यू गो इनटू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स और उनके कैरिकुलम, उनको क्या पढ़ाना है, उनको कैसे ट्रीट करना है, उसको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी, सिर्फ इनके बारे में. बट पेशेंट क्या सफर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं. तो दिस बॉडी इज फॉर्म स्पेशली टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट सेफ्टी. ओके, कि पेशेंट सेफ्टी के बारे में, बिकॉज patient is a living human being. It is not a piece of मशीन और समथिंग जिस पे आप एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काम करो. नहीं, ही इज अ पेशेंट, ही इज अ लाइफ, ही हैज इमोशन, एंड वी बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, हमें उस लाइफ को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, तो because we have seen कि माल प्रैक्टिसेस होने लगी, लोग सीरियस नहीं थे. इन ऑर्डर टू ओवरकम विद ऑल दीज मिस्टेक्स, तो हमने ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया, निग्लिजेंस को रिमूव कर दिया. ओके, so these are the basic things which we if I talk about related to consumer protection act, why it has to be needed and why it has to become. So this is all reasons over the years which we so I told you who is the consumer into the medical professional. मैंने आपको already explain कर दिया कि a patient who pay to get the services by the doctors, by the hospital, any person who pays for the patient. For example, मैं नहीं, मेरी sister मेरे लिए payment कर रही है because मैं उस condition में नहीं थी. तो उस condition में वो जो मेरे behalf पे जो बंदा डिसीजंस ले रहा है, वो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमर बन सकता है या बन सकती है. ओके, नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ दिस, द पेशेंट हु इज कंज्यूमर एंड उनकी जो भी लीगल हायर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का डेथ हो जाता है ऑन टेबल और ही और शी फील, तो उनके जो भी लीगल हायर्स हैं, ठीक है, वो और जो भी डिक्रीज है वो कंसिडर किए जाते हैं consumer. Okay, if the payment has been made by any patient who is not legal hire of the decrease, he too has to consider as a consumer. Okay, फॉर एग्जाम्पल कि वो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, और मे बी द इफ द पेमेंट इज मेड बाय एनी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन नहीं है, मेरा फ्रेंड है, कोई फैमिली दूर का फैमिली फ्रेंड है, या वॉट एवर मे बी, अगर वो मेरा लीगल हायर नहीं है और वो मेरे लिए पेमेंट कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट सिनारियो ऑल्सो वो मेरा ये उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को वो भी कंज्यूमर बन सकता है, बिकॉज ही इज डूइंग द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मी. ओके, so these are the basic definition who all people will become a consumer in case of medical professionals or in case of medical services. Okay, so अब ये people को जो consumers आपके बन गए हैं, अब इनको right है, अगर इन्हें कहीं भी फील होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, कुछ ये हुआ, तो they have the right to go and do the take the appropriate actions. Okay, now next is what is a complaint. So any allegation, अब allegation means कि अभी तक complaint क्या है कि आप जो भी बात कह रहे हैं उसको प्रूफ तो हुई नहीं है, तो एलिगेशन ही हुआ कि आप एक आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं सामने वाले पे. एनी एलिगेशन इन written made by complaint that the service hindered or agreed
to be hired or availed of or by him suffer from deficiency in any respect. For example, मैंने बोला कि भैया मैंने तो ये पैकेज लिया था, इस पैकेज में ये फॉर एग्जाम्पल ये बात हुई थी बट आपने ये प्रोवाइड नहीं किया, इन दैट सिनेरियो आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, ठीक है. दैट इज थिंग. हु इज अ कंप्लेंट मीन्स, व्हाट इज अ कंप्लेंट मीन्स, आप कंप्लेंट का इन जनरल क्या मीनिंग होगा, अ कंज्यूमर और द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, any registered voluntary consumer association and one or more consumers when there is a numerous of consumers having same interest which makes a complaint. For example, कई बार क्या होगा कि आप देखेंगे कि हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट की वजह से काफी पेशेंट की डेथ हो जाती है, जो कि तो इन दैट सिनेरियो जिन सभी ने उस कंडीशन में वो चीज को फेस किया है या वट एवर द प्रॉब्लम दे फेस, वट एवर थिंग्स दे फेस, दे हैड अ राइट टू गो एंड आस्क. तो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है. ओके. एंड एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉडी भी आपका कंप्लेन आपके अगेंस्ट आ सकते हैं उनसे भी, ठीक है. तो दीज पीपल विल file a complaint or become a complainer for you. Okay. And in which format we need to give this complaint? So basically we need to give this complaint in the form of written allegation आप file करेंगे, ठीक है. Or it may be into police station, it may be into the consumer court. Okay. So wherever you have to be, it all over things will be have to be in the form of written format. Okay. So now, what does a service mean? Service is any description which is made available to the potential users, including the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electric, any other for boards, anything, It will be including both, housing and construction, entertainment, amusement, and proving of न्यूज टू द अदर इंफॉर्मेशन. आप फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी है, कोई कुछ है, तो हमारा एक कंसेंट फॉर्म भी साइन होता है या पेशेंट का पर्सनल इंफॉर्मेशन भी. तो ये सब भी अगर लीक होती है, तो यू हैड अ राइट कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक आउट किया. लीक आउट तो आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसमें भी फॉलो अप होता है. ओके. सो and does not include the rendering of any service free of charge. आप कोई भी फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा और वो मिस हो जा रहा है या वो हॉस्पिटल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो आप उस केसेस में कोई कंप्लेन नहीं कर सकते. आप उन्हीं चीजों के लिए कंप्लेन कर सकते हैं जिनके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं. फ्री ऑफ सर्विसेज के लिए आप कोई कंप्लेन हॉस्पिटल के अगेंस्ट नहीं क्लेम कर सकते. ओके. So these are the basic definitions which we have come across related to the Consumer Protection Act. If I talk about is your what is service, what is consumer, who can become where we can complain and to whom we can complain. नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस. ओके. व्हाट इज नेग्लिजेंस? तो आपका दो तरीके का नेग्लिजेंस फील हो सकता है आपको. एक आपका प्रोफेशनल नेग्लिजेंस यू विल फील, सेकंड इज योर मेडिकल नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस. सो प्रोफेशनल नेग्लिजेंस मींस ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी caused by omission to do something which is reasonable. The man guided by those consideration who would do or do something which is prudent and reasonable man would not do. For example कि अब हमने ड्यूटी दी, आपका जो है कि भाई आरएमओ होगा उधर, ठीक है. अब जब आप पहुंचे, आपको कोई कंप्लेन है, कोई डाउट है और आप रीजनल मेडिकल ऑफिसर ऑन फ्लोर नहीं मिल रहा है या मेडिकल ऑफिसर आपको ऑन फ्लोर नहीं मिल रहा फॉर एग्जांपल, तो इन दैट सिनेरियो आप बार बार बोल रहे हैं कि भाई मेरे पेशेंट को नीड है, मेरे को डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए, 24 आवर्स हो गए और डॉक्टर नहीं आया, आपने पेशेंट को किस बात का एडमिट कर रखा है. तो व्हाट हैपेंस बेसिकली, तो ये आपका प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है कि आप हॉस्पिटल क्लेम कर रहा है कि हमारे हर फ्लोर पे आरएमओ है, रीजनल मेडिकल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट वेन एवर यू आर
यू वांट टू टॉक टू, वहां पे एक नर्सिंग स्टाफ आ जा रहा है, एक फार्मा स्टाफ आ जा रहा है, ठीक है, एक हेल्पर और वार्ड बॉयज आ जा रहे हैं, बट देर इज a proper medical professional. If I talk about any doctor or something, they were not there. So this is a professional negligence कि आपने commit किया है कि doctor should be there, but wherever I need to contact, to whom I'm contacting, to someone from medical, to someone from pharma, someone from ward boy. So this is a medical negligence. Okay, professional negligence. Medical negligence में क्या बात होगा कि lack of skill होगा. Malpractice is a lack of skill कि आप claim कर रहे हैं कि आपका डॉक्टर जो है वो कार्डियो सर्जन है, but whenever I'm checking और ये तो we found कि वो क्लेम जो कर रहे हैं वो बंदे के पास डिग्री नहीं है, कोई प्रॉपर स्किल नहीं है, उसको वो सर्जरीज नहीं आती हैं, बट टू अर्न मनी आपने उससे वो सर्जरीज करवाई क्योंकि वो लो पे है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ माल प्रैक्टिस. ओके, so now you understand what is the difference between a malpractice and what is a medical negligence. So the lack of reasonable care and skill, willful negligence on the part of a doctor in treatment of a patient wherever by health or life of the patient is endangered. तो आपके पास skill नहीं है, proper staff नहीं, proper doctors नहीं, still you perform that procedure, still you do the procedure, that will consider as a malpractice because it will cause any kind of danger to the patient. आपका patient को कुछ भी हो सकता है, उसकी death भी हो सकती है, उसको कुछ भी हो सकता है, so that will consider as negligence. Okay, clear? So how doctors are included into the Consumer Protection Act? So the National Consumer Protection Act dispute redressal the commission in order to decrease decrease the doctor's patient relationship in the contract for the personal service, and it is not master the servant relationship. So for example कि आप doctor patient relationship is something different. कंज्यूमर how doctor is involved, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने डॉक्टर्स को भी बताया कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या रिलेशनशिप है. ऐसा नहीं कि डॉक्टर जो है वो मास्टर और पेशेंट जो है वो सर्वेंट है, या समथिंग मतलब कि अपोजिट हो जाए कि पेशेंट पे कर रहा था वो मास्टर बिकम अ मास्टर एंड वी बीइंग अ डॉक्टर वी बिकम अ सर्वेंट. तो ऐसा कोई नहीं है, उन्होंने दोनों की इक्वल राइट्स की बात करी है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एवरीवन राइट. सो द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विस, could not contract for the personal पर्सनल सर्विस. ठीक है, सो पर्सनल सर्विस के लिए है कि आप मतलब आपका बेनिफिट होना चाहिए. इट इज नॉट लाइक कि आप पर्सनल बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपने बेनिफिट के लिए आप उस चीज का मिस यूज कर रहे हैं, मिस गाइड करके उसको बेनिफिट ले. ओके, hence the patient who has a sustained injuries in the course of treatment can sue the doctor into the consumer protection court for compensation. So in India तो हमें लगता है कि बहुत कम लोग डॉक्टर्स को सू करते हैं, बट इन फॉरेन बॉडीज में, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस में जो मेडिको लीगल अथॉरिटीज होती है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है. वहाँ के डॉक्टर्स को जो है लीगल लॉज और लीगल क्लॉज के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है. एंड वहां पे आप देखते होंगे कि पेशेंट जो है डॉक्टर्स को बहुत इजीली सू कर देते हैं फॉर देयर माल प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग. बट इन इंडिया वी आर नॉट दैट मच अवेयर एंड लैक ऑफ दिस, but still nowadays we are facing certain conditions and certain things will be cases will be coming across. So for all these reasons, being a medical professional and being a part of that management, we had a basic idea कि हम कैसे deal कर सकते हैं और कैसे इन conditions को day to day life में या प्रोफेशन में होने से हाउ वी कैन रिड्यूस इट. फॉर दैट रीजन हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए. फॉर दैट रीजन वी आर स्टार्टिंग ओवर हियर. ओके, so till now any doubt, any queries? No, ma'am. Okay, so just go through this. Okay, and if you are free we can continue for another 5 minutes.
Yes, ma'am, you can continue. Okay. Then I'll continue for another 5 minutes, okay? And whatever, because it is a little bit longer topic, so it will take some time, okay? So, wait a minute, I'll share the new slide. Now, अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, कैसे मैनेज करना होता है, जो हमारा आपका जो भी रोल अब आएगा, ठीक है? तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ठीक है? अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मैंने बताया किस किस लेवल पे काम करता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पे होता है, एक सेंट्रल काउंसिल होता है जो कि आपका नेशनल लेवल पे होता है। इन तीनों के अबव जो है, स्टिल पेशेंट अगर कंज्यूमर आपका सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसके पास राइट्स होती हैं कि वो जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दे सकता है, अपना रिक्वेस्ट कर सकता है, और वहां से वॉट एवर मे बी द कंसिडरेशन, वहां से जो भी होगा उसको वो डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो सुप्रीम बॉडी जो है, सुप्रीम कोर्ट आपका जो भी हमारा इंडिया में माना जाता है सुप्रीम बॉडी फॉर द एनी काइंड ऑफ दिस, ओके? सो अब एम क्या है? टू प्रमोट द कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है? And resolution passed by these councils are to be recommended in nature. So whatever the resolution, whatever the decisions has to be passed by these bodies, हमें वो follow करना पड़ता है, चाहे फेवर में decision may be in any favor, आपका मेडिकल के फेवर में आ रहा है या जो भी आ रहा है, तो both parties has to follow that, okay? Both party has to act accordingly, okay? whatever may be the claim of the consumer, आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है, ठीक है? आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होता है? चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ठीक है? स्टेट काउंसिल में चेयरपर्सन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट होता है, ठीक है? एंड सेंट्रल काउंसिल में क्या होता है? चेयरपर्सन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये सारे पर्सन होते हैं एंड दिस इज हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, ओके? तो ये आपका बेसिक मेथड है जहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, ओके? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सो 3 टायर्स ऑफ आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। पहले आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, फिर आप स्टेट कमीशन में जाएंगे, फिर नेशनल कमीशन में जाएंगे। तो ये आपका 3 टायर्स या 3 सिस्टम्स होते हैं जहां पे आप इस तरीके से ही प्रोसीड करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी कंप्लेन है, सबसे पहले आपको लोअर से स्टार्ट करना है। तो लोअर आपका हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगे? आप स्टेट लेवल में जाएंगे। स्टेट लेवल से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट आप कहाँ जाएंगे? अपने लेवल में, ठीक है? तो दिस इज वेयर the complaint is filed, okay? Now where you have to file that complaint, so district forum, if the value of service and the compensation claimed is less than rupees 20 lakh, तो अब कैसे हम क्लेम का, अब हमने फाइनेंशियल केसेस का डिवीजन किया है। तो आपका जो भी कंप्लेन है अगर वो 20 लाख से कम का है, लेस देन 20 लाख है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे, ठीक है? अब इससे ज्यादा वैल्यू है या सर्विस का कंपनसेशन इससे ज्यादा है बट 1 करोड़ से कम है, नॉट मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ 1 रुपीज भी होगा तो आपको नेशनल में जाना पड़ेगा, ठीक है? बट 1 करोड़ तक है तो आप कहाँ जाएंगे? फिर अगेन स्टेट कमीशन में। नेशनल में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ सर्विस जो है आपका कंपनसेशन का अमाउंट जो 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप नेशनल में जाएंगे। तो इस फॉर्मेट में आप कंप्लेंट फाइल करते हैं। तो आप बेसिक से भी स्टार्ट करते हैं, सेकेंडरी आप फाइनेंशियल मैटर्स को हम इस तरीके से भी अमाउंट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके? क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस एंड मोर knowledge personalities and more experience from persons की जरूरत होती है, more skilled persons की। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने वो बिठा रखी है कमिटीज, एंड अप्रोच भी उसी अकॉर्डिंगली वी नीड टू
नेक्स्ट इज द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स। डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपका चेयरपर्सन एंड मेंबर्स क्या है? डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या है कि चेयरमैन अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। ओके, सो चेयरमैन कौन बनता है? मैंने आपको बताया ना कि चेयरमैन ऑफ दिस दिस दिस, अभी मैंने आपको पीछे बताया था। अब नाउ क्या उनका बेसिक नॉलेज और अवेयरनेस होना चाहिए कि वो क्वालिफाइड होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए। टू और मोर मेंबर्स हु हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन डीलिंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड इन वेरियस फील्ड्स, one of whom is a woman. Okay, टू पर्सन होने चाहिए, उन दोनों में से एक फीमेल जरूर होनी चाहिए। ओके, ऐसा ना हो कि सामने वाला कंप्लेन करे कि भाई नहीं मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ एंड जो भी फीमेल बॉडी सी ये वो। तो फॉर दैट अवेयरनेस आजकल हम जो है हर जगह मैनेजमेंट में भी प्रमोट की फीमेल्स होनी चाहिए, इक्वालिटी की वजह से, जेंडर इक्वालिटी की वजह से। ओके, नेक्स्ट स्टेट कमीशन की बात करेंगे। तो चेयरपर्सन वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। आप स्टेट लेवल पे आएंगे तो आपका हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। तो पर्सन हैज टू बी डेफिनेटली क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज, और जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट फ्रॉम द स्टेट सुप्रीम बॉडीज। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट के जो है आपका वो पर्सन आपका जो है आपका स्टेट हाई कोर्ट जज होना चाहिए। ठीक है, other two other two other members is qualified experience as डिस्ट्रिक्ट फॉरम विद इन द स्टेट। ठीक है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट फॉरम विद इन द स्टेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन। सो नेशनल कमीशन में एक चेयरपर्सन होगा एंड 4 अदर मेंबर्स होंगे। तो आप देखो अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा मोर एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए हमें, मोर एक्यूरेट डिसीजंस चाहिए। तो आपको उतना ही ज्यादा मेंबर्स की बॉडी मेंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और उतना ही ज्यादा एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी आपका बढ़ता जाएगा। ओके, तो आपका इसमें क्या होना चाहिए कि एक चेयरपर्सन होना चाहिए हु हैज बीन नो, क्या होगा वो कि जज होगा सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बॉडी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 और मोर अदर मेंबर्स एंड वन whom shall be a woman। ठीक है, तो आप हर स्टेट में आप देखेंगे कि हर फॉर्म में हम कोशिश करते हैं कि एक फीमेल बॉडी होनी ही चाहिए। ठीक है, कि किसी को ये ना फील हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल फीमेल सेफ्टी कंसर्न, बहुत सारी रीजन होते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम एक फीमेल बॉडी को भी रखते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक फंक्शनैलिटीज कि आपका कंज्यूमर एक्ट क्या है, हु इज अ कंज्यूमर, व्हाट ऑल थिंग्स वेयर दे कैन फाइल, एंड आपका बॉडी कैसे वर्क करता है और कौन कौन से मेंबर्स इन में इन्वॉल्व हैं, कौन चेयरपर्सन बनेगा, कौन क्या बनेगा, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड ऑलरेडी। ओके, सो अभी तक हमने बेसिक फॉर्मेट पढ़ लिया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल केसेस एंड एवरीथिंग। तो वी विल बेसिकली, लेट मी चेक, गिव मी 2 minutes। जो भी एक्ट है वो हम, ठीक है, अब लोकेशंस कहाँ कहाँ है, लेट्स स्टडी दैट। आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है बेसिकली जो आपका कंज्यूमर कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम का, इफ आई टॉक अबाउट हरियाणा स्टेट का अगर मैं बात करूं तो आपका रोहतक में है। ठीक है, और स्टेट कमीशन जो है वो आपका जो है बेसिकली पंचकुला में है, सेक्टर 4 में। और नेशनल जो है आपका बेसिकली दिल्ली में, नेशनल हर स्टेट का नेशनल दिल्ली में होगा। तो आप अपने स्टेट वाइज भी इसको जिस भी स्टेट में फंक्शन करे, जिस भी स्टेट में काम करे, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉट एवर स्टेट आप ऑप्ट करेंगे उसका अलग होगा, बट आपका जो नेशनल होगा वो सेम रहेगा। ओके, ये मैंने सिर्फ लोकेशंस बताई हैं कि कहाँ का ऑफिस लोकेटेड है। ओके, तो अब वॉट एवर द थिंग्स आर रिमेनिंग, जैसे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट दिस लॉ, तो वो वी विल ट्राई टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बिकॉज Thank you, ma'am. thank you. So what is the Consumer Protection Act and how we are going to deal, and certain cases we will discuss, तो वो हम basically next class में in depth study करेंगे। ठीक है, so tell me one thing, which time is more comfortable for you people, so I'll plan accordingly for next class.